شکر ہے آج ہم 19ویں کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ 20 چاہیے تھا، 20واں بک فیئر تھا، لیکن ایک سال کووڈ کی نظر ہو گیا. یقیناً اس لمبے سفر کے اندر جو دوستوں کا ساتھ رہا 2005 سے، اس نے آج ہمیں یہاں پہ 19ویں کراچی انٹرنیشنل بک فیئر میں پہنچایا. بغیر ایک اچھی ٹیم کے آپ منزل کو اچیو نہیں کر سکتے. اس ٹیم کا جو بہت امپورٹنٹ ایک ساتھ تھا وہ پاکستان کا میڈیا ہے، کراچی کا میڈیا ہے. آپ سب سے ہم نے پہلی اور دوسری جو پریس کانفرنس کے نام سے اجتماع کیا تھا، اس میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم ایک اچھے مقاصد کے تحت یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے 3 مقاصد ہیں. اس میں پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دینا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری نہیں ہے یا یہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک بک لورز کی جگہ ہے. دوسرے نمبر پہ اپنے بچوں کو اچھی کتابیں انڈر ون مہیا کرنا تاکہ ہم تعلیم کے معیار کو آگے بڑھا سکیں اور اچھے سے اچھے کتابیں جو ہیں وہ بچوں تک پہنچ سکیں. تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے بک سیلرز اور پبلشرز ہیں ان کو بھی معاشی فائدہ ہو، تاکہ جب ان کے پاس کچھ پیسے آئیں گے تو وہ اچھی اچھی کتابیں چھاپیں گے اور اس سے اور ویرائٹی سامنے آئے گی. تو یہ تینوں مقاصد آپ کی مدد سے ہم نے ابھی تک اچیو کیے ہیں. ایک پازیٹیو میڈیا جو ہوتا ہے اس کا کردار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان ممالک میں جہاں پہ میڈیا نے ان اچھے چیزوں کی مدد کی، ان ممالک میں ترقی کی. تو یقیناً آپ کا جو ساتھ ہے اس پہ آپ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کم. ایک پازیٹیو میڈیا، ایک پازیٹیو اپروچ جو ہے وہ آگے بڑھنے میں بڑی مدد دیتی ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹائم بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں جو بھی مدد کی ہے اس کے اندر ہمارے اپنے بک سیلرز کی اپنی آپ مدد کے تحت ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ابھی سلمان پیرزادہ صاحب سے بہت اچھی باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے بڑی ہمت افزائی کی تو بڑا اچھا لگا. تو لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے اپنے ملک کے اندر تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے. ہم نے کسی سرکاری ادارے سے مدد نہیں لینی، ہم نے کسی سے کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں چاہیے. ہم اور آپ مل کے اپنے بچوں کے لیے اچھے کام کر سکتے ہیں اور اپنی پیٹ کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنے ملک کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے پھیلاؤ کو بہت کراچی سے لے کر پشاور اور گلگت بلتستان تک پہنچا سکتے ہیں. میری شاید آواز کے اندر اتنی بات نہیں ہے کیونکہ میں لاسٹ 3 منتھ سے بیمار رہا ہوں. میں سرجریز میری 2-3 ہوئی ہیں، لیکن آج میں ہمت کر کے آ گیا صرف اسی لیے کہ آپ سب آ رہے ہیں. تو اتنے سعید صاحب جیسے دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے 20 سال 17 سال 18 سال سے تو ریٹائر ہو چکے سعید صاحب ہے نا، تو آپ سب ساتھ چل رہے ہیں. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہاف پہ. اور کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کے کنوینر سب سے پہلے تو تمام میڈیا کے لوگوں کا، پرنٹ میڈیا الیکٹرانکس کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہر سال کی طرح میں اس کو ذرا سا بریف کر دیتا ہوں کہ 3 ہالس ہیں. ان 3 ہالس میں ہمارے 330 بک سیلرس ہیں، جیسے پریزنٹیشن آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں اور ممالک سے تو لوگ آتے ہیں مگر ضرورت ترکی سے بھی لوگ آئیں اور اپنے اسکالر یو کے سے لوگ آئے ہیں. اور اپنی سیرمنی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو برٹش بھی فزیکلی موجود ہوں گے، جو ہماری 5 دن کا فیمس ماحول ہوں گے. تو یہ اس بات کی اعتماد کرتا ہے کہ پبلشرس کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں، جو آ رہے ہیں انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہمارا پہلے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا یہاں پہ. جو حالات ہے ماشاء اللہ بک فیئر کی کامیابی دیکھ کے اور بزنس دیکھ کے ماشاء اللہ وہ خود پرسنلی آتے ہیں اور یہاں پہ حصہ لیتے ہیں. 330 اسٹال تو میں نے آپ کو بتا دیے چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسپانسر بھی ہیں جو پاکستان مرکنٹائل کے نام سے، وہ پہلی بار 10 سال کے بعد ہمارے ساتھ
स्पॉन्सर के तौर पर शामिल हुए हैं। इसका अफ्ताह जो है वो इंशाल्लाह वज़ीर आला सिंह से मुराद अली शाह साहब करेंगे और 1:30 बजे का टाइम उन्होंने रखा है आने का। श्री सरदार अली शाह एजुकेशन मिनिस्टर वो हमारे जो हैं गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और मोहम्मद अहमद शाह साहब जो आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं और आजकल आपको पता है कि बहुत कामयाबी से अपने प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वो हमारे कीनोट स्पीकर हैं। इसी तरीके से कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी साहब वो स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हमने इनवाइट किया है डीजी रेंजर साहब को, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं भी आना चाहता हूँ। आप सबसे ये गुजारिश है कि टाइम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारा 1 घंटे का टाइम स्लॉट है, उसमें हमें सारा कुछ करना है। तो कोशिश कीजिएगा मीडिया वाले खास तौर पर अपने 1 बजे तक पहुँच जाएँ ताकि हम अपना प्रोग्राम शुरू कर सकें वक्त पे इंतजाम पजीर करें। हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है वो राशिद साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत ताउन किया हमारे साथ। और हॉल्स की तरह वो देख रही है, क्योंकि वहाँ फायर हो रही है, जो लॉजिस्टिक बॉर्डर वाले साहब हो रहा है, तो उसका रास्ता ज़रा हम लोग कन्फ्यूज ना हुई है। हम लोग 1, 2, 3 में हैं और ओपनिंग सेरेमनी इंशाल्लाह हमारे हॉल 4 में होगी। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपको क्या नोटिफिकेशन देंगे जुमेरात को 1:15 बजे। अस्सलाम वालेकुम, राशिदुल हक मेरा नाम है और गुज़िश्ता 19 साल से हम KLBF के साथ हैं। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल इसमें तो हमें एक एजाज़ मिला है कि हम एज एन ऑर्गेनाइजर जो है उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और ये लोगों अपने गुज़िश्ता 19 साल से हमारे साथ देख ही रहे होंगे। बुक और ये हमारा एक जॉइंट वेंचर अभी हो गया है और हमारी भारी जिम्मेदारी होती है इसको कामयाब बनाने में। हमारी पूरी कोशिशें हैं, पूरी हम अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। किस तरह ये एक जो अदब और कल्चर का जो है वो एक यहाँ पर सिटी का लैंडमार्क बन गया के लिए उसको किस तरह जो है वो हम यानी बेनिफिशियल बनाएं। और ये यकीनन मीडिया के आप लोगों का किरदार है इसमें, इसको लोगों तक पहुँचाने में और लोगों तक जो है इसकी आगाही देने में। मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों का जो रोल है वो हमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हमारा साथ इस तरह गुज़िश्ता 19 साल से चल रहा है। अभी 3 से निकल के इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 20 पे आ जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लेके आए, अपनी कीमती वक्त निकाला। बाकी बातें तो लोगों ने आप लोगों को ब्रीफ कर ही दी है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की वहाँ की प्रेजेंस एक्सपो में हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मीडिया के जो हमारे पार्टनर्स हैं तो बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा बहुत कोऑपरेट करते हैं, साथ देते हैं हमारा। और इसी तरह से इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस वाले जो हमारे साथ पिछले 19 साल से साथ हैं और इस बुक फेयर को कामयाब करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इनकी बड़ी टीम है जो कि हमारे साथ कोऑपरेट करती है और इस टीम के साथ हम मिलके इस इवेंट को अब तक साथ लेके चले हैं। और दोबारा आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना टाइम निकाल के यहाँ पर तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। ये जो लोग हमारे साथ स्टेज पे हैं ये वो टीम है जो कि कराची इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए ऑफिशियली काम करती है। पीछे सामने सलीम साहब बैठे हैं, लिबर्टी से कामरान साहब बैठे हैं, पाकिस्तान लॉ हाउस से, साथ में इकबाल गाजियानी हैं प्रोग्रेसिव से, और दीगर दोस्त हैं जो आप पीछे होंगे, नजर नहीं आ रहे यहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है कि जहाँ जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन खुशनसीबी ये है कि अच्छे लोगों का साथ आज कराची इंटरनेशनल बुक फेयर को यहाँ तक ले आया। तो मैं आप सबका ममनून हूँ। ये बात याद रखें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, बल्कि ये आपके शुक्रिया अदा करने के लिए आपको हम जहमत देते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाएं। हम आपका वो शुक्रिया हर साल अदा करते हैं, 1 साल बढ़ा के। तो ये अब आपका 19वां शुक्रिया है जो आपकी कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह से। और मकसद सिर्फ यही होता है कि आपका साथ रहे और आप लोग इसको जो अच्छी कवरेज देते हैं उस पर हम आपका शुक्रिया अदा करें और आपके साथ एक टेढ़ी चाय पिएं। थैंक यू वेरी मच। भाई ये बताएं कि आप हर साल कहते हैं कि हमने सब लिखते हैं कि कागज सस्ता हो जाए, कुछ कीमतों में कमी आ जाए, लेकिन हम उसका उलट देखते हैं। हर साल देखते हैं कि खाना और महंगा हो रहा है, किताबें और महंगी हो रही हैं।
तो क्या होगा आइंदा, क्या फ्यूचर देखते हैं आइंदा 8-10 साल में? अस्करी भाई, बात दरअसल ये कि इतने पुराने सहाफ़ी, इतने सीजन सहाफ़ी, इतने बड़े रोजनामा जंग के आप एजुकेशन पेज के इंचार्ज हैं, आपको ये बात पता है कि एक आम पाकिस्तानी जो कोशिश कर सकता है वो हम करते हैं। हम हमेशा दरख्वास्त करते रहेंगे कि तालीम के लिए ख़ास तौर पे किताबों का कागज़ की कीमतों को कम किया जाए, उस पर जो इम्पोर्टेड कागज़ है उस पर टैक्स कम किया जाए, जो इम्पोर्टेड किताबें हैं उस पर भी टैक्स कम किया जाए, क्योंकि ये सब हमारे बच्चों के लिए आ रही हैं और हमें अपने अच्छे मुस्तक़बिल के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना है। फैसला करना जो है वो उन लोगों का काम होता है जो ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे। आप उनसे ये सवाल जरूर करिएगा, आप लोगों का हक बनता है कि साहब आप किताबों पे, तालीम पे टैक्सेस को किस तरह वो कम कर सकते हैं, और आप कम से कम वो आपको बताएंगे कि 18वीं तरमीम की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनसे कहेंगे आप हमारा साथ दें, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी हो या कोई भी लोग हो, मिडिल क्लास जो है वो एक स्पाइन होती है किसी भी मुल्क की, और इस मिडिल क्लास का आदमी कम खाएगा, मोटरसाइकिल पे सफर करेगा, लेकिन अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। ये है मिडिल क्लास की डेफिनेशन। तो हमारी कोशिश है कि ये जो बुक फेयर्स होते हैं इसमें भी आप देखते हैं कि 50% तक डिस्काउंट्स जाते हैं। हम किसी को मजबूर नहीं करते हैं, क्योंकि वो जितने बुक सेलर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, वो भी मेहमान होते हैं। कोई पेशावर से आ रहा है, कोई जेलम से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, तो हम सबके ममनून है कि वो आते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल बहुत अच्छा था और बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये जरूर परसों करिएगा चीफ मिनिस्टर साहब से भी और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी। अच्छा सर, जो आपकी बुक सेलर और जो एसोसिएशन है उसके माली मामलात पे लोग सवाल उठाते हैं, और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि आपके ही जो तहरीक के लोग थे उन्होंने उठाया कि इतने अरसे से ऑडिट नहीं हुआ, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। आपके और दूसरे लोगों पे ये किसी से कोई डकी चुकी वो बात नहीं है, उसकी वजाहत नहीं आती, वो चीज़ सामने नहीं आती कि इतने गंभीर मामला क्यों होते हैं। पहली बात तो ये है रोज जब कोई मैटर जो है वो कोर्ट में हो तो सब जुडिस, और वी आर इन द कोर्ट, लेट्स कोर्ट डिसाइडेड कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। हम फैसला करने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि अगर हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएं तो वो मुनासिब बात नहीं है। कोई हम पे इल्ज़ाम लगाए ये उसका हक है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में 65 बरस की उम्र में कोई ट्रेड के अंदर मुझ पर हाथ उठा के ये नहीं कह सकता कि हमने कोई खराबी की है ट्रेड के अंदर या कोई इस तरह की चीज़ की है। हाँ, अगर किसी को शिकायत है तो उसका हक है, और एक डेमोक्रेटिक जो माशरा होता है उसके अंदर ये हक होता है। अब हमने चूँकि में है तो लेट्स गो सेकंड। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो ये एसोसिएशन है पाकिस्तान बुक सेलर्स एसोसिएशन, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है? मैंने कहा अभी मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप मेरे अच्छे दोस्तों के हल्के में आते हैं। आपको मैंने एक बात कही कि लेट्स कोर्ट डिसाइडेड कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब उसका फैसला आ जाए और उसको आपके साथ खुशियां मनाएंगे। लेकिन अभी हम कराची इंटरनेशनल मैंने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? वो कौन सा कोर्ट केस में कोर्ट चल रहा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। हमने आपसे बड़ा कोशिश की राब्ता करने की। नहीं, मैं बीमार था, मैं माजरत चाहता हूँ कि आपने मुझसे अच्छा सर राब्ता करने की कोशिश की और मैं एक चीज और बता दें कि आपके कोर्ट में जो गए हैं वो आपका फैसला है, एसोसिएशन का फैसला है। दूसरा जो पेनल्टी आप पे लगी थी वो आपने अदा कर दी है, नहीं अदा की? हाँ, ये देखिए मैंने बात कही ना बहुत जबरदस्त। देखिए ये बात समझ में आती है कि जब हम कोर्ट में गए हैं या कोर्ट में गए हुए हैं तो कोर्ट ही फैसला करेगा ना इस सारी चीजों का। इंडिविजुअली चीजों का फैसला करने का हक हमारे पास नहीं है। फैसला है, एसोसिएशन का नहीं, फैसला हमारा फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो खुद उसके मेंबर हैं। हम तो खुद पिछले 19-20 साल से जो आज आप कामयाबियां देख रहे हैं, जो आज आप हमारे मेहमान हैं, तो वो हम इसी वजह से हुए हैं कि हम सब ने एक साथ मिलकर माशाअल्लाह से काम किया। तो थैंक यू वेरी मच कि आप सब खुश मिला। नहीं, वो अभी सवाल हो चुका, दोस्तों सवाल हो चुका। अभी हम इस सिलसिले में कोई राय नहीं देना चाहते। हम इसमें कोई भी राय नहीं देंगे। लेट्स गो डिसाइडेड। और ये चीज जो है ये भी बड़ी कामयाबी की चीज होती है कि इतने लोग मुझसे ये बातें करें, इतनी खुशी की बात है कि आप लोगों को हमसे इंटरेस्ट है।
आप लोग हमारी इज्जत करते हैं, दैट्स वेरी गुड। ये मतलब दिस इज मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इसी तरह मुल्क के दीगर अवाम दीगर चीजों के अंदर भी आप सबका साथ चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चाय तैयार है।